آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ علاقہ مرٹھواڑہ کے لیے خوشخبر، جائیکواڑی ڈیم میں پانی کا ذخیرہ ہو گیا 66.97%۔ وقتی طور پر 5 صنعتی علاقوں اور 3 اضلاع کے لیے پینے کے پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے حل۔ سٹی ہیریٹیج کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد، تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے کیے گئے کئی اہم فیصلے۔ میونسپل کمشنر نے دیا تاریخی فصیل کے اطراف سے ناجائز قبضہ جات ہٹانے کا حکم، سیاحت کو فروغ دینے ٹورزم کوریڈور شروع کرنے کا بھی کیا گیا فیصلہ۔ ڈگری صرف ایک سند ہی نہیں بلکہ معاشرے کے تئیں ذمہ داریوں کا بھی ہے احساس۔ تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلنے کی رکھتی ہے صلاحیت۔ مولانا آزاد کالج میں ڈگری تقسیم تقریب سے میونسپل کمشنر اور دیگر دانشوروں نے کیا خطاب۔ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈسپلن سکھانے ٹریفک برانچ نے پھر شروع کی خصوصی مہم۔ 1215 رکشا ڈرائیورز کے خلاف کسا گیا شکنجہ اور عائد کیا گیا 11 لاکھ روپیوں سے زائد کا جرمانہ۔ خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جاری برسات کے سبب جائیکواڑی ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 66.97% ہو چکا ہے، جس کے سبب 5 صنعتی علاقوں کے علاوہ 3 اضلاع کے پینے کے پانی کا مسئلہ وقتی طور پر حل ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع متعلقہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے جاری موسلادھار بارش کے سبب جائیکواڑی ڈیم یعنی ناتھ ساگر میں پانی کے ذخیرے میں اطمینان بخش اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بدھ 29 جولائی 2026 کو دوپہر 3 بجے تک ڈیم 66.97% بھر چکا ہے، جبکہ اس کا زندہ آبی ذخیرہ 51.34 TMC تک پہنچ گیا ہے۔ اس وقت ڈیم کی سطح آب 1515.43 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مجموعی آبی ذخیرہ 77.40 TMC ہو چکا ہے۔ گزشتہ 3 گھنٹوں کے دوران ڈیم میں اوسطاً 41,000 کیوسکس کی رفتار سے پانی کی آمد جاری رہی۔ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں پانی کے ذخیرے میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ موجودہ آبی ذخیرے کو دیکھتے ہوئے جائیکواڑی ڈیم پر انحصار کرنے والی 5 MIDCs کے علاوہ اورنگ آباد، جالنا اور احمد نگر اضلاع میں آئندہ 1 سال تک پینے کے پانی کی فراہمی کا مسئلہ وقتی طور پر حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رواں سال مانسون سے پہلے محکمہ موسمیات نے کم بارش کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن ضلع ناسک اور جائیکواڑی کے آبی ذخیرے کے علاقوں میں ہونے والی زبردست بارش نے ڈیم میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھا دی ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈیم اب 75% بھراؤ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب ایک دلچسپ مگر تشویشناک حقیقت یہ بھی ہے کہ جائیکواڑی ڈیم پیٹھن شہر کے قریب واقع ہونے کے باوجود پیٹھن اور اس کے اطراف میں خاطر خواہ بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے قریب سیزن کی اگ آئی فصلیں بارش کی کمی سے متاثر ہو رہی ہیں اور کسانوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ علاقائی کمشنر جی شکانت نے نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت جاری کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ باقی ماندہ تمام کام مقررہ میعاد میں اور معیاری کیے جائیں۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت کیے گئے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ڈویژنل کمشنر کے دفتر میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت ڈویژنل کمشنر جی شکانت نے کی۔ اجلاس میں ضلع پریشد کی چیف ایگزیکٹو آفیسر منو PM، میونسپل کمشنر امول ایڈگے، مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کی چیف انجینئر منیشا پالانڈے، کانٹریکٹر کمپنی کے افسران اور دیگر متعلقہ حکام موجود تھے۔ اجلاس میں پانی کی پائپ لائنوں کو جوڑنے، جیک ویل، پمپنگ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، بٹر فلائی والو کی مرمت، پانی کی تقسیم کے نظام اور دیگر جاری کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے ہدایت دی کہ جہاں کہیں بھی پائپ لائن میں رساؤ ہو اسے فوری طور پر درست کیا جائے تاکہ پانی بغیر رکاوٹ واٹر ٹینکوں تک پہنچ سکے۔
म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने बताया कि घर घर नल कनेक्शन उन शहरियों को दिया जाएगा जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। इसके लिए दरख्वास्त फॉर्म भरना होगा, जबकि आधा इंच नल कनेक्शन की फ़ीस 6,000 रुपये मुकर्रर की गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस सिलसिले में अवामी बेदारी के लिए ऑडियो पैगाम भी तैयार किया गया है। डिवीज़नल कमिश्नर ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कैंप लगाए जाएँ, पम्पलेट्स तकसीम किए जाएँ और कचरा गाड़ियों के ज़रिए ऑडियो पैगामात नशर करके शहरियान को स्कीम से आगाह किया जाए। साथ ही तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को बाहमी ताउन से बाकी काम जल्द और मेयारी तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत भी दी गई। तलबा की तहरीक और उनके जज्बे को समझें और उसे सियासत का शिकार न बनाएं। ये मशवरा रियासती वज़ीर बराए सनअत उदय सामंत ने अपोजिशन को दिया। रियासती वज़ीर बराए सनअत उदय सामंत ने मनोज जरांगे पाटिल के हवाले से भी कहा कि अगर उनके जहन में कोई शुकूक हैं तो हुकूमत उन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि 8 दिन पहले उनकी मनोज जरांगे से मुलाकात हुई थी और दोनों के ताल्लुकात सियासत से बालातर ज़ाती नौइयत के भी हैं। उन्होंने तलबा की तहरीक में सियासी मदाखलत पर एतराज़ करते हुए कहा है कि कुछ सियासी रहनुमा तहरीक के असल मकसद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि तलबा के मसाइल को संजीदगी से समझा जाए और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि आइंदा तलबा को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मनोजजींनी कशासाठी बोलवले मला माहित नाही, परंतु मनोजजी हे स्वतः प्रसाद लाड साहेबांच्या संपर्कामध्ये आहेत. मी देखील अनेक वेळा त्यांच्याशी चर्चा करतो. विखे पाटील साहेब देखील चर्चा करतात. त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये काही शंका असतील त्या शंकांचं निरसन आम्ही नक्की करू. आम्ही मध्ये भेटलो ना 8 दिवसापूर्वी. त्यांचे चिरंजीव जेव्हा आजारी होते आणि ते लिलावतीला होते तर मी माझ्या माहितीप्रमाणे पहिला जाणारा मंत्री होतो. त्यांच्यावर तिथं चर्चा 2-2.5 तास केली. मी त्यांच्या मुलाच्या तब्येतीची चौकशी केली. त्याच्यामुळे असं काही नाही माझ्या भेटी कमी झाल्या आहेत किंवा भेटी कमी होणार आहेत. शेवटी राजकीय संबंध, आंदोलनाचे संबंध आणि वैयक्तिक संबंध हे वेगवेगळे असतात आणि माझे आणि त्यांचे वैयक्तिक संबंध देखील आहेत, ते राजकारणाच्या पलीकडचे आहेत. माली साल 2025-26 के जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का सालाना गोशवारा सेवार्थ पोर्टल पर दस्तयाब किया जा चुका है। ये इत्तला मुतल्लिका महकमे से मौसूल हुई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक महालेखाकार यानी अकाउंट्स एंड इंटाइटलमेंट 2 नागपुर ने महाराष्ट्र हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन के GPF अकाउंट्स का माली साल 2025-26 का सालाना गोशवारा सेवार्थ सिस्टम पर जारी कर दिया है। जिन मुलाजमीन के GPF अकाउंट्स महालेखाकार नागपुर के पास हैं वो सेवार्थ पोर्टल पर अपना सालाना गोशवारा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। महकमे ने हिदायत दी है कि मुलाजमीन अपने नाम, तारीख़ पैदाइश, मोबाइल नंबर और दीगर ज़ाती मालूमात अच्छी तरह से जांच लें। अगर किसी किस्म की गलती या कमी पाई जाए तो मुतल्लिका दफ्तर मेहनती किसानों की हौसला अफजाई के लिए शोबे ज़राअत की जानिब से साल रवां पीक स्पर्धा का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। शोबे ज़राअत ने खरीफ सीज़न 2026 के लिए ग़िज़ाई अजनास, दालों और तेलदार फसलों के पैदावार मुकाबलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। इस साल पहली मरतबा दरख्वास्त का पूरा अमल एक अलहदा ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। इस मुकाबले में धान, जवार, मकई, रागी, तुअर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी समेत 11 फसलें शामिल की गई हैं। मुकाबला ताल्लुका, ज़िला और रियासत तीनों सतहों पर होगा, जबकि आम और कबायली ज़मरे के किसानों के लिए अलग अलग इनामात रखे गए हैं। इनामात भी खासे पुरकशिश हैं। ताल्लुका सतह पर 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये, ज़िला सतह पर 10,000, 7,000 और 5,000 रुपये, जबकि रियासती सतह पर 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये तक के नकद इनामात दिए जाएंगे। मूंग और उड़द के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है, जबकि दीगर फसलों के लिए 31 अगस्त 2026 तक दरख्वास्त दी जा सकती है। इस मुकाबले में शिरकत के लिए किसान के नाम पर ज़मीन होना, ज़मीन उसके अपने कब्ज़े और काश्त में होना और मतलूबा दस्तावेज़ात के साथ ऑनलाइन दरख्वास्त देना ज़रूरी है। शोबे ज़राअत ने किसानों से अपील की है कि वो पीक स्पर्धा रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर बरवक्त दरख्वास्त दें या मज़ीद मालूमात के लिए अपने ताल्लुका ज़रई ऑफिसर के दफ्तर से रब्ता करें। ताल्लुका जालना के मौज़े बठान के किसानों ने गट नंबर 108 की ज़मीन से खेत रास्ता पैमाइश के मुताबिक फौरी खुलवाने के मुतालबे पर
जिला कलेक्टर ऑफिस पर बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू की है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत ज़िले में अब तक तकरीबन 800 FPOs कायम हो चुकी हैं, जिनमें से 500 से 600 कंपनियों ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाया है। इस मंसूबे के तहत मौसमी पैदा करने वाली, बीज तैयार करने वाली, ज़रई आलात फराहम करने वाली और दीगर ज़रई कारोबार से वाबस्ता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां कायम की गई हैं। इन कंपनियों के ज़रिए किसान मुश्तरका तौर पर पैदावार, प्रोसेसिंग, ज़ख़ीरा, मार्केटिंग और फ़रोख्त का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में इजाफ़ा और देही मईशत को मजबूती मिली है। शोबे ज़राअत से मौसूला इत्तला के मुताबिक कृषि संजीवनी मंसूबे के दूसरे मरहले में ज़िले के 156 से 168 देहातों को शामिल किया गया है। आत्मा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अमोल आगवान ने इन देहात के किसानों से अपील की है कि वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों से वाबस्ता होकर सरकारी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। म्हणजे कुठल्याही न्यायालयानं आमच्या शेतातले झाडं थोडे सांगेल सुद्धा 17-18 झाडं फळं देणारे तहसीलदार महसूल 1 आणि महसूल 2 यांनी विनापरवाना तोडले आणि आम्ही त्याचा दुसऱ्या दिवशी वन खात्याला अर्ज देऊन मुळासकट झाडं तोडल्याचा पंचनामा सुद्धा केला आणि आमच्या हद्दीतून कुठल्याही प्रकारचा रस्ता करण्याचा आदेश नव्हता. 80, 81, 86 तरी सुद्धा पाणी जाण्याचा प्रवाह मोडून तहसीलदार महसूल जालना यांनी रस्ता निर्माण केला आणि मोजणी करून सरळ करू म्हणे तर मोजणीचं 12-13 मीटर पलीकड हद्द खुणा गेल्या आणि त्याप्रमाणे करून देतो अशा 2 आदेश काढते, पण तहसीलदार त्या आदेशाच्या दिवशी काढल्यावर नोटीस देऊन येत नाही. 25 तारीख काढली होती मागची, आताची कालची 27 तारीख काढली होती. येतो म्हणून सरळ करून देतो म्हणून काही आतापर्यंत केली नाही. वेळोवेळी नुसते म्हणते आणि करत नहीं। सिटी हेरिटेज कमेटी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जिसमें शहर के तारीख़ी विरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई अहम फ़ैसले किए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने तारीख़ी फ़सील के अतराफ़ से नाजायज़ कब्ज़ात फ़ौरी हटाने का हुक्म दिया है। इस मीटिंग में तारीख़ी फ़सील, हिफाजती दीवारों और उनके अतराफ़ मौजूद तजावुज़ात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी गई कि फ़सील से 15 मीटर के अंदर मौजूद तमाम तजावुज़ात को फ़ौरी तौर पर हटा लिया जाए। इसके अलावा शहर के तारीख़ी दरवाज़ों, फ़सील और दीगर विरसा मकामात पर उगी हुई घास और झाड़ियों को साफ़ करने की भी हिदायत दी गई, ताकि उन मकामात की खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत बरकरार रहे। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने शहर में सयाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से टूरिज़म कॉरिडोर का एक जामे मनसूबा तैयार करके ज़िला मनसूबा बंदी कमेटी को मंजूरी और फ़ंड के लिए भेजने की हिदायत दी। इजलास में ये भी तय पाया कि हेरिटेज सेस से जमा होने वाले तकरीबन 46 लाख रुपये के फ़ंड से शहर के क़दीम आबी ढांचों की मरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ का काम इंटेक के ताउन से अंजाम दिया जाएगा। इस इजलास में महकमा आसार क़दीमा, टाउन प्लानिंग, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इंटेक के अफसरान और माहिरीन भी शरीक थे। ज़िला जालना में किसानों को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाने की गर्ज से शोबे ज़राअत के आत्मा प्रोग्राम के तहत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के क़याम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत ज़िले में अब तक तकरीबन 800 FPOs कायम हो चुकी हैं, जिनमें से 500 से 600 कंपनियों ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाया है। इस मंसूबे के तहत मौसमी पैदा करने वाली, बीज तैयार करने वाली, ज़रई आलात फराहम करने वाली और दीगर ज़रई कारोबार से वाबस्ता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां कायम की गई हैं। इन कंपनियों के ज़रिए किसान मुश्तरका तौर पर पैदावार, प्रोसेसिंग, ज़ख़ीरा, मार्केटिंग और फ़रोख्त का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में इजाफ़ा और देही मईशत को मजबूती मिली है। शोबे ज़राअत से मौसूला इत्तला के मुताबिक कृषि संजीवनी मंसूबे के दूसरे मरहले में ज़िले के 156 से 168 देहातों को शामिल किया गया है। आत्मा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अमोल आगवान ने इन देहात के किसानों से अपील की है कि वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों से वाबस्ता होकर सरकारी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। काय स्थिती इथे? जालना जिल्ह्यामध्ये साधारणतः आपले सर्व 8 तालुक्यांमुळून जे शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झालेल्या आहेत, जवळपास 700 ते 800 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपल्या स्थापन झालेल्या आहेत जालना जिल्ह्यामध्ये.
आणि त्यांची आजची परिस्थिती जर विचार केली, त्यांनी जो काही लाभ घेतलेला आहे, कंपन्या ॲक्टिव्ह आहेत. जवळपास नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी, ज्याला आपण पोकरा योजना म्हणतो, टप्पा 1मध्ये जवळपास 550 ते 600 कंपन्यांनी विविध घटकांतर्गत लाभ घेतलेला आहे. स्मार्ट प्रोजेक्ट जो जागतिक बँकेचा अर्थसहाय्य दुसरा प्रोजेक्ट आहे. स्मार्ट प्रोजेक्ट अंतर्गतसुद्धा जवळपास 25 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी लाभ घेतलेला आहे. एकंदरीत पाहता जालना जिल्ह्यामध्ये जवळपास आज अखेरपर्यंत पोकरा योजना, स्मार्ट योजना असेल, जवळपास 600 ते 650 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी लाभ घेतलेला आहे. गुरु पूर्णिमा के मौके पर क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के वालदैन की ताज़ीम के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया और ये त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। तकरीब का आगाज़ परम सदगुरु श्री गजानन महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया गया। बाद अज़ां तलबा ने अपने वालदैन की इज़्ज़त व तकरीम करते हुए उन्हें गुलाब के फूल पेश किए और उनकी मोहब्बत, क़ुरबानी और बेहतरीन तरबियत पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर स्कूल के बानी और माहिर तालीम SP जवड़कर ने कहा कि वालदैन इंसान के सबसे पहले उस्ताद होते हैं, इसलिए बच्चों में वालदैन के एहतराम, शुक्रगुजारी और आला अखलाक व अक़दार को फ़रोग़ देने के मकसद से इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में मेयारी तालीम के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के एहतराम और बेहतरीन अखलाकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इस मौके पर सोनाई जावड़कर ने वालदैन को गुरु पूर्णिमा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि माँ बच्चे की पहली उस्ताद होती है, जबकि काव्या पांडे ने भी ज़िंदगी में वालदैन की बेमिसाल अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब के दौरान हुमैरा शेख, नायरा शेख, कैफ शेख, खुज़ैर बागबान और आकिब शेख ने अपने वालदैन को गुलाब के फूल पेश करके उनके तई अपनी मोहब्बत, एहतराम और इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में वालदैन, तलबा और असातिज़ा मौजूद थे। तकरीब की निज़ामत स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना जवड़कर ने अंजाम दी। मौलाना आज़ाद कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा में डिग्री तकसीम के लिए एक तकरीब सोसाइटी के चेयरमैन फ़रहत जमाल की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे मेहमान खुसूसी के बतौर शरीक थे। तकरीब में शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे, जबकि मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के सदर फ़रहत जमाल ने सदारत की। इस मौके पर CMI के आला ज़िम्मेदारान, कॉलेज इंतज़ामिया, असातिज़ा, वालदैन और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान कामयाब तलबा व तालिबात को डिग्रियाँ अता की गईं और उनकी इल्मी कामयाबियों को सराहते हुए उन्हें मुस्तक़बिल में मुल्क मिल्लत की खिदमत के लिए इल्म, किरदार और अखलाक को अपना सरमाया बनाने का पैगाम दिया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि डिग्री सिर्फ़ एक सरद नहीं बल्कि मुआशरे के तई ज़िम्मेदारियों का एहसास भी है। तालीम ही वो ताकत है जो कौमों की तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है और नौजवान नस्ल को अपनी सलाहियतों को मुस्बत सिमत में बरूएकार लाना चाहिए। मौलाना आज़ाद कॉलेज आज जिस मकाम पर खड़ा है, इसके पस मंज़र में इदारे के बानी मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की दूर अंदेश क़यादत, तालीमी विजन और अक़लियतों में मेयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए उनकी बेमिसाल खिदमात कार फरमा हैं। उन्होंने ऐसे तालीमी इदारों की बुनियाद रखी जहाँ जदीद तालीम के साथ साथ अखलाकी अक़दार और कौमी यकजहती को भी फ़रोग़ दिया जाता है। इसी तरह मरहुमा पद्मश्री फ़ातिमा ज़करिया ने भी इदारे की तरक्की, तालीमी मेयार की बुलंदी, ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ और कौमी सतह पर मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी की शनाख्त को मुस्तहकम करने में काबिल क़दर किरदार अदा किया है। इनकी बसीरत और मुसलसिल रहनुमाई के नतीजे में ये इदारा आज मुल्क के मुमताज़ तालीमी मराकज़ में शुमार होता है। डिग्री तकसीम की ये तकरीब न सिर्फ तलबा की बरसों की मेहनत का एतराफ़ दी, बल्कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और पद्मश्री फ़ातिमा ज़करिया के इस अजीम तालीमी मिशन की कामयाब तकमील की एक खूबसूरत झलक भी साबित हुई, जो आज भी हज़ारों नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत बन रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस के इश्तराक से 30 जुलाई जुमेरात को लाइट हाउस में एक मेगा जॉब फेयर मुनक़िद किया जा रहा है, लिहाजा बेरोज़गार लड़के और लड़कियां इस जॉब फेयर से फ़ायदा उठाएं। ये अपील ऑर्गेनाइज़र्स ने की है।
स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से 30 जुलाई 2026 को सिडको N5 कम्युनिटी सेंटर में एक शानदार रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। बताया गया है कि लाइट हाउस गुज़िश्ता 5 बरसों से नौजवानों की महारत में इजाफा और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। इस रोजगार मेले में 500 से ज़्यादा आसामियाँ दस्तयाब होंगी, जिनमें बैक ऑफिस, डाटा एंट्री, टेली कॉलिंग, HR एग्जीक्यूटिव, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, BFCI और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमतों के मौक़े शामिल हैं। डिप्लोमा, ITI, इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले नौजवान इन आसामियों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मुंतज़मीन ने शहर के तमाम नौजवान लड़कों और लड़कियों से अपील की है कि वो इस रोज़गार मेले में ज़रूर शिरकत करें और अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतर मुलाजिमत हासिल करने का मौका हाथ से जाने न दें। गोगा बाबा टेकड़ी और बौद्ध लेनी इलाक़ों में बढ़ते जुराइम पर काबू पाने की गर्ज से बेगमपुरा पुलिस ने कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी है। ये इत्तला सीनियर इंस्पेक्टर परवीना यादव ने दी। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर परवीना यादव की हिदायत पर डायल 112 मार्शल पेट्रोलिंग और दामनी दस्ता तैनात किया गया है। पुलिस ने सयाहों से शाम 6 बजे के बाद गोगा बाबा टेकड़ी, बुद्ध लेनी और निपट निरंजन इलाके में न रुकने की अपील की है। शराब नोशी, छेड़छाड़, फहश हरकत, रील्स के नाम पर गैर अखलाकी सरगर्मियों और क़ानून व नज़्म में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में CCTV के ज़रिए मुसलसल निगरानी की जा रही है और शहरियान से भी तारीख़ी व मजहबी मकामात के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन की अपील की गई है। हरसूल इलाके में एक 68 साला मुअम्मर खातून को लॉटरी का झांसा देकर उनके हाथ से 4 सोने की चूड़ियाँ, जिनका वज़न तकरीबन 3 तोले था, नामालूम चोर लेकर फरार हो गए। हरसूल इलाके में एक 68 साला खातून को लॉटरी का झांसा देकर धोखा दिया गया। नामालूम मुलजिम ने आपकी लॉटरी लगी है, रकम दिलवाता हूँ, ये कहकर एतमाद हासिल किया और उनके हाथों से तकरीबन 3 तोले सोने की 4 चूड़ियाँ लेकर फरार हो गया। ये वारदात राजधानी होटल के करीब पेश आई और पूरी कार्रवाई CCTV में कैद होकर रह गई। हरसूल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने शहरियान से अपील की है कि वह अजनबी अफराद के झांसे और मीठी बातों में हरगिज़ न आएँ। सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करते हुए ख़ुद को भाई, डॉन और किंग पेश करने वालों के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक वसी मुहिम शुरू की है। ये इत्तला मुतल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। साइबर पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने 220 अफराद को निगरानी में रखा है, जबकि 846 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1000 से ज़ायद काबिल एतराज़ रील्स भी हज़फ कर दी गई हैं। साइबर पुलिस ने वाज़ेह किया है कि संगीन जुराइम पेशा अनासिर की हिमायत में पोस्ट, स्टेटस या रील्स शेयर करने वालों के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत केसेस दर्ज किए जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद सख्त और मौसर बनाई जाएगी। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से एक बार फिर ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत 1512 रक्षा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 लाख रुपयों से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। ज़रा से मौसूला इत्तला के मुताबिक खुसूसी मुहिम के तहत 11,52,500 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है, जिसमें से 1,39,600 रुपये वसूल किए जा चुके हैं, जबकि 6 रक्षा गाड़ियाँ जब्त भी कर लिए गए। ये कार्रवाई गैर कानूनी पार्किंग, बग़ैर वर्दी रक्षा चलाने, अगली नशिस्त पर मुसाफिर बिठाने, बग़ैर लाइसेंस गाड़ी चलाने और बकाया जुर्माने वाले रक्षों के खिलाफ की गई। पुलिस ने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयाँ मुसलसिल जारी रहेंगी। वालुज सनती इलाके के तिरंगा चौक में मौजूद ट्रैफिक सिग्नल अचानक ख़राब हो गया, जिसके पेश नज़र यहाँ ट्रैफिक जाम न हो, इस गर्ज से ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। नाजरीन, औरंगाबाद अहमदनगर कौमी शाहराह पर वाक़े वालुज MIDC के तिरंगा चौक का ट्रैफिक सिग्नल बुध की सुबह से फ़नी ख़राबी के सबब अचानक बंद पड़ गया, जिससे ट्रैफिक जाम का खदशा पैदा हो गया था। ताहम ट्रैफिक ब्रांच के पुलिस सब इंस्पेक्टर कारभारी गायकवाड़
اور پولیس اہلکار وکاس کملاڈو نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر دن بھر ہاتھوں کے اشاروں سے ٹریفک کو منظم کیا۔ شدید ٹریفک کے باوجود ان کی مستعدی کے باعث کسی بڑے جام کی نوبت نہیں آئی اور آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہی۔ ادھر شہریان اور گاڑی چلانے والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ترنگا چوک کے خراب سگنل کو جلد از جلد درست کر کے دوبارہ فعال کیا جائے تاکہ مستقبل میں ٹریفک کی دشواری سے بچا جا سکے۔ گزشتہ دنوں بھوکردن علاقے سے خواتین بچت گروپ کے 9 لاکھ روپیوں کی چوری کے معاملے میں بھوکردن پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مدھیہ پردیش سے 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 8,80,000 روپیے ریکور کر لیے۔ جالنہ ضلع کے بھوکردن میں 9 لاکھ روپیے کی سنسنی خیز چوری کے معاملے میں پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکی تفتیش کی مدد سے پولیس نے مدھیہ پردیش سے 3 ملزموں کو گرفتار کرتے ہوئے 8,80,000 روپیے نقد برآمد کر لیے ہیں۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق 23 جولائی 2026 کو جے یوگیشور بچت گروپ کی صدر ببیتا بھاگاجی اچوے نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی بھوکردن شاخ سے 9 لاکھ روپیے نقد نکالے تھے۔ یہ رقم انہوں نے اپنی پک اپ گاڑی کی کیبن میں رکھی تھی۔ راستے میں بھوکردن جعفر آباد روڈ پر رتن مالا لانس کے قریب چائے پینے کے لیے گاڑی روکنے کے دوران نامعلوم چور گاڑی کا شیشہ توڑ کر رقم سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے تھے۔ اس واردات کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ معاملہ درج ہوتے ہی ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ تیغویر سنگھ سندھو، ایڈیشنل ایس پی وکرم سالی اور سب ڈویژنل پولیس آفیسر ڈاکٹر نتن کاٹیکر کی رہنمائی میں پولیس انسپکٹر کرن بڑوے نے تفتیش شروع کی۔ پولیس نے جائے واردات اور بینک کے CCTV فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ تکنیکی تفتیش اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر معلوم ہوا کہ ملزم مدھیہ پردیش کے رہنے والے ہیں، جس کے بعد اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر راہل بانگر اور ان کی ٹیم نے مدھیہ پردیش کے راج گڑھ اور اشوک نگر اضلاع میں کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا، جن میں راہل اتم سسودیا، کالو عرف شیو پرساد سسودیا اور کلو عرف جگ پرکاش سانسی شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 8,80,000 روپیے نقد برآمد کر لیے ہیں، جبکہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ بڑی رقم لے جاتے وقت پوری احتیاط برتیں، جہاں ممکن ہو آن لائن لین دین کریں۔ بینک سے رقم نکالنے کے بعد بلا ضرورت راستے میں نہ رکیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوراً ڈائل 112 پر دیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ علاقہ مراٹھواڑہ کے لیے خوشخبر، جائکواڑی ڈیم میں پانی کا ذخیرہ ہو گیا 66.97%۔ وقتی طور پر 5 صنعتی علاقوں اور 3 اضلاع کے لیے پینے کے پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے حل۔ سٹی ہیریٹیج کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد، تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے کیے گئے کئی اہم فیصلے۔ میونسپل کمشنر نے دیا تاریخی فصیل کے اطراف سے ناجائز قبضہ جات ہٹانے کا حکم، سیاحت کو فروغ دینے ٹورزم کوریڈور شروع کرنے کا بھی کیا گیا فیصلہ۔ ڈگری صرف ایک سند ہی نہیں بلکہ معاشرے کے تئیں ذمہ داریوں کا بھی ہے احساس۔ تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلنے کی رکھتی ہے صلاحیت۔ مولانا آزاد کالج میں ڈگری تقسیم تقریب سے میونسپل کمشنر اور دیگر دانشوروں نے کیا خطاب۔ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈسپلن سکھانے ٹریفک برانچ نے پھر شروع کی خصوصی مہم۔ 1215 رکشا ڈرائیورز کے خلاف کسا گیا شکنجہ اور عائد کیا گیا 11 لاکھ روپیوں سے زائد کا جرمانہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔